students, now today I will take the marathon of the numerical problems regarding to the roller contact bearings. Right? तो आज मैं आपको रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूंगा. पहले मैं जो कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स हैं उसके करूंगा, देन अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर दैट देन आई विल टेक द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द गेट एग्जामिनेशंस जो गेट एग्जाम में आए हैं. उसके बाद वो प्रॉब्लम्स में आई विल टेक अप दिस. ठीक. तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने जो चूज किया है आपके लिए, सो दिस इज द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द वेरिएबल लोड. ये प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबल लोड के ऊपर है. इस शाफ्ट, देखिए पहले प्रॉब्लम क्या है. इस शाफ्ट रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोड्स. द बेयरिंग supporting the shaft are subjected to stationary equivalent radial load of 3 kilonewton for 10% of time, 20 kilonewton for 2 kilonewton for 20% of the time, and 1 kilonewton for 30% of the time, and no load for the remaining time of the cycle. Right? So the total life expected for the bearing is कितना है? 20 into 10 raised over 6 revolutions at 95% reliability. So calculate the dynamic load rating of the ball bearing. So this is the problem. This problem belongs to your variable loads here. So what is given in the problem? One shaft that is rotating at a constant speed, and it is subjected to having the variable loads. So as I told you, what are the variables load? Suppose in a factory, the machine is working for 8 hours. So you can say for the first 2 hours, the machine is having the load this much, and it is rotating at speed this much. The next 2 hours, the load will change and its speed will also change. Then another next 2 hours, its load will change, the speed will change, and the last 2 hours, again the load will change and the speed will change. Right? But here he says the speed is constant. Speed is constant and the load is changing. Right? So the bearings supporting the shaft are subjected to stationary equivalent radial load of 3 kilonewton for 10% of time. तो जहां पे मैं लिखता हूं इसको, रेडियल लोड किसका है? 3 kilonewton for 10% of time. तो आप कह सकते हैं W1 this is equal to 3 kilonewton for 10% of time, right? 2 kilonewton for 20% of time. W2 is given 2 kilonewton for 20% of time, and 1 kilonewton for 30% of time. So W3 जो आपका है तीसरा वेरिएबल लोड, this is 1 kilonewton for 30% of time, right? No load for the remaining time of cycle. और जो आपका W4 होगा वो क्या है? This is no load for remaining percent of time. तो remaining percent of time कितना रहा? 10% टाइम के लिए जो लोड था, दिस इज 3 kilonewton, 2 kilonewton for 20% time, 1 kilonewton for 30% time. So you can say that W4 is equal to euro for 40% of time.
right? So this is given to you. This is given. Now next देखिए, the total life expected for the bearing is 20 into 10 raised to power 6 revolution at 95% reliability, right? तो 95% reliability के ऊपर लाइफ आपको दिया है, सपोज करो L95 के ऊपर जो आपकी लाइफ है, दिस इज 20 into 10 raised to power 6 revolutions, right? Calculate the dynamic load rating of the ball bearing. हमें क्या निकालना है? डायनेमिक लोड रेटिंग. C इज द डायनेमिक लोड रेटिंग ऑफ द बॉल बेयरिंग. C हमें निकालना है. वो बेयरिंग कौन सा है? दिस इज द बॉल बेयरिंग. तो बॉल बेयरिंग में आपको पता है, इधर मैं N नहीं लूंगा, मैं K लेता हूं, बिकॉज N इज द, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग N फॉर द स्पीड. So K, I will say small k, this is equal to 3 for ball bearings. So this is given in the problem. ये आपको प्रॉब्लम में दिया गया है. इसको आप दोबारा अच्छे तरीके से सुनिए, नोट कर लीजिए, और फिर मैं इसको रब करूंगा, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, आई हैव टू गिव द सॉल्यूशन, आई नीड द स्पेस फॉर दैट. तो इसको आप देखिए कि शाफ्ट रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड का, तो इसकी जो स्पीड है शाफ्ट की, ये भी आप नोट कर लो. एन जो है, स्मॉल एन, दिस इज द कांस्टेंट स्पीड, एंड वेयर एन इज कांस्टेंट. तो स्पीड आपकी इसकी क्या है? कांस्टेंट है. A shaft rotating at constant speed is subjected to variable loads. The bearing supporting the shaft are subjected to the stationary equivalent radial load of 3 kilonewton, that is W1, 3 kilonewton for 10% of time, 2 kilonewton for 20% of time, 1 kilonewton for 30% of the time, and no load for the remaining time of the cycle, right? The total life expected for the bearing is 20 into 10 to the power 6 for 90% reliability. This life is given as 95% reliability. हमें क्या निकालना है? डायनेमिक लोड रेटिंग ऑफ द बॉल बेयरिंग वी हैव टू कैलकुलेट, राइट? सो देखिए, नाउ आई विल स्टार्ट द प्रॉब्लम. आई विल रब दिस पोर्शन, जस्ट कीप इट हियर. So this is W is equal to 3 K N for 10% of time. W2 आपको दिया है, W3 दिया है, और W4 आपको दिया है 0. हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका टेबल बनाएंगे, राइट? तो मैं सबसे पहले एक टेबल बनाता हूं. जहां बना लेते हैं टेबल, एक टेबल बना लेता हूं. ये पहला कॉलम आपका क्या हो गया? दिस इज लोड, राइट? ये आपका आ गया स्पीड, ये आपका आ गया परसेंटेज ऑफ टाइम, दिस इज योर रेवोल्यूशंस पर मिनट, राइट? तो ये आपका कॉलम आ गया, राइट? सो देखिए, लोड इसका कितना था? पहला था लोड आपका 3 किलो न्यूटन. स्पीड सभी की कांस्टेंट है, ध्यान देता हूं मैं. परसेंटेज ऑफ टाइम क्या है? 10% है. तो रेवोल्यूशंस कितनी होगी इसकी? 0.1 into n. दिस इज इक्वल टू n1 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सेकंड आपका है 2 किलो न्यूटन
हमें ये इस किस्म का टेबल बनाना चाहिए सो दैट वी कैन कैलकुलेट इट प्रॉपरली, राइट? सो 2 किलो न्यूटन स्पीड इज कांस्टेंट. दिस इज फॉर 20% ऑफ द टाइम. और N2 this is equal to 0.2 N, right? So next is 1 kilonewton. W3 is given 1 kilonewton. This is the speed of the N है because this is constant. That is 30% of the time. or N3 this is equal to 0.3 N. 0.3 N, right? W4 this is your 0. राइट, लोड नहीं है तो स्पीड भी क्या होगा इसका? स्पीड को भी हम क्या करेंगे? कंसीडर कुछ नहीं करेंगे, तो सेम टाइम नहीं है. तो N4 क्या आएगा आपका? N4 दिस इज इक्वल टू 0, राइट? N4 दिस इज इक्वल टू 0, राइट? सॉरी, लोड आपका ये है, दिस इज आपका क्या N है, दिस इज 40% ऑफ टाइम. और N4 दिस इज इक्वल टू 0.4 into N, राइट? सो दीज आर द वैल्यूज विच आई हैव टेकन इन द टेबल, राइट? ये हमारे पास टेबल के ऊपर ये वैल्यूज आ गई हैं. ये इसलिए मैंने किया, जब हम वेरिएबल लोड्स को कैलकुलेट करेंगे तो हमें N1, N2, N3, N4 की वैल्यूज चाहिए, राइट? रेवोल्यूशंस पर मिनट फॉर पर्टिकुलर टाइम. ये 10% ये लोड था तो इसका N1 आया 0.1 into N. ये 2 किलो न्यूटन था, N2 is 0.2 N, 1 किलो न्यूटन, and this is Q, right? Now the next one is, तो हमें एक रिलायबिलिटी जो है इसकी L95 की रिलायबिलिटी दिया है. देखिए, जब हमें ये डायनामिक लोड कैपेसिटी हम फॉर्म करते हैं, तो अगर हमें डायनामिक लोड कैपेसिटी फॉर्म करनी है तो हमारे पास एक फार्मूला है L10 या L90. L90 लिख लीजिए, L10 और L90 बोथ आर सेम, राइट? दिस इज C अपॉन P रेज टू पावर, मैं इधर K लिखूंगा, राइट? रेज टू पावर K into 10 raised to power 6 revolutions, right? So where C is the dynamic load capacity and P is the equivalent load. P is the dynamic equivalent load. तो मैं P की जगह अगर मैं इधर W से कर रहा हूं तो मैं इसको W लिख देता हूं. So W is the dynamic equivalent load here, right? हमें निकालना है ये C, right? हमें C निकालना है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, C upon W raised to power K, right? C upon W raised to power K. This is equal to L90 upon 10 raised to power 6, right? So therefore, तो मैं यहां से C निकाल सकता हूं. C is equal to W into L90 और L10, right? Raised to power 6 raised to power 1 upon K, right? तो ये हमारा फार्मूला है C निकालने का, कि C हम इस तरीके से निकालेंगे. तो जहां भी आप देखते हैं लाइबिलिटी आपको, लाइफ जो आपको दी है वो आपको लाइफ दी है 95. लाइफ क्या दी है? L95 के ऊपर लाइफ दी है. L90 की लाइफ आपको निकालनी है. लाइफ एट the rated life you have to calculate. L90 you have to calculate, rated life you have to calculate because L ये आपको दिया है 95, राइट? तो हमारे पास एक रिलेशन है, ये अपने पीछे पढ़ा है, मैंने कराया आपको, L95 अपॉन L90, राइट? L95 अपॉन L90, दिस इज इक्वल टू log E 1 upon R95 upon log E 1 upon R90
raised to power 1 upon 1.7. So this is the relation. ये हमने ये relation already write किया है, पढ़ा है ये कि if there are two reliabilities are given, suppose if one reliability is given and you have to find out the if one life is given at one reliability and you have to find out the second life at another reliability, then you can use this relation L95. This is L95 divided by L90. This is equal to this, right? तो अब ये हमें नहीं चाहिए. Therefore, L95 upon L90, this is equal to log, ये मैं लिख सकता हूं, log 1 upon 0.95, right? This is log 1.09 raised to 1 upon 1.7, right? So L95 is given here. तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है? इसको आप सॉल्व कर लीजिए. Therefore L95 पहले आप इसे रहने दीजिए. L95 on L90. This is equal to, मैं इसको सॉल्व करता हूँ. So now you solve this. Log E 1 upon 0.95 divided by log E 1.09. इसको log E को जो आपका कैलकुलेटर में है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2.3 log E 1.05. तो ये सॉल्व करते हैं. So this is 0.05123. So this is first आपका है 0.05123. नीचे वाले को इसी तरीके से सॉल्व करो. नीचे वाला क्या आएगा? This is 0.1052. 0.1052, right?
एंड 1/1/7 इसको भी इसी तरीके से ले लेंगे हम. दिस इज 1 divided by 1.17. This is 0.8547. So this is 0.8547, right? So L95 is given to you. L95 is given. तो पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा आपका? Just calculate this. Calculate this one. 0.123 divided by 0.5052 raised to power 0.8547. This is 0.54, right? So this is 0.54. So therefore L95 लिख सकते हैं हम. क्या है आपका? 20 into 10⁻⁶ divided by L90, right? So this is equal to how much? 0.54. ये सारा जो कैलकुलेट किया हमने, दिस इज 0.54, राइट? Therefore L90 निकल गया आपका. L90 दिस इज इक्वल टू 20 into 10⁻⁶ divided by 0.54. Calculate this. 20 into 10⁻⁶ divided by 0.54. So this is 3703 10⁻⁶. So this is how much? 37 into 10⁻⁶, right? So this is 37 into 10⁻⁶ revolutions. So this is your L90 की वैल्यू जो आपके पास आ गई, राइट? तो ये चीज आपने कैलकुलेट कर ली. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डायनामिक इक्विवेलेंट लोड W व्हेन द लोड आर वेरिएबल. तो जब आपके लोड वेरिएबल्स होंगे उस वक्त हमें डायनामिक इक्विवेलेंट लोड हमें कैलकुलेट करना है. तो इसका रिलेशन जो मैंने आपको दिया था, उसको ड्राइव भी मैंने किया था, तो इसका रिलेशन क्या है? So therefore radial equivalent load. So this is W is equal to so this is equal to N1 into W1 raised to power K plus N2 W2 raised to power K plus N3 W3 raised to power K plus N4 W4 raised to power K divided by N1 plus N2 plus N3 plus N4 raised to power 1 by K. So this is the relation. When there is variable loads are given, for certain time, then you will use this relation to calculate the dynamic equivalent radial load or dynamic
इक्विवेलेंट लोड. सो दिस रिलेशन इज दिस. अब देखिए N1, N2, N3 और N4 की वैल्यूज जहां पे हैं, तो मैं कह सकता हूं therefore W इज इक्वल टू N1 की तरफ आपका 0.1 into N, and W1 is given. W1 is how much? 3. Yes, W1 is 3 into 3 raised to power K. K आप ले सकते हैं आप 3 in the bar bearing, because this is the bar bearing, तो वैल्यू जो K की होगी in bar bearing K is equal to 3, right? Plus N2. What is N2? So N2 is 0.2 N. W2 is given. W2 is this 2 kilonewton, 2 raised to power 3 plus N3 आपका आया 0.3 N, right? 0.3 N, तो इसमें कितना है 1 into 1 raised to power 3 plus W4 आपका क्या है 0. W4 is जहां आप ऐसे लिखते हो 0.4 N, because N4 is 0.4 N into W, right? 0. So this is equal to क्या आ गया N1 कितना है? N1 आपका आ गया 0.1 N plus 0.2 N plus 0.3 N plus 0.4 N, right? So this is equal to this much. Raised to power 1 by 3. So raised to power, this is 1 by 3, right? अब देखिए आप नेक्स्ट क्या करिए, N को आप कॉमन ले लीजिए. N ऊपर भी है और N आपका नीचे भी है, तो J आपका बन गया 0.1 into 3 whole cube plus 0.2 into 2 whole cube plus 0.3 into 1 whole cube plus 0. This is 0, right? 1 by 3 and ये ऊपर भी आपने N कॉमन लिया, जो ऊपर भी आपने N कॉमन लिया, तो नीचे भी आप N कॉमन ले रहे हैं, N कैंसिल हो गया आपका. So this is 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus 0.4, right? So देखिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 0.1 into 3 raised to power 3, ये कितना है? Just calculate this. This is 2.7. Therefore, W is equal to 2.7 plus 0.7
This is 1.6. This is 1.6 plus this is 0.3 and this one 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4. So it means this is the complete time of the rotation, right? ये पहले 10% टाइम था, 20 है, 30 है, 40 है. So this is the complete time for the revolution. So if I will say that this is equal to 1, this is equal to 1, right? This is equal to 1. This is equal to 1. कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट ओनली जस्ट आई वांट टू शो यू हियर एट रेज टू पावर 1/3. रेज टू पावर 1/3. तो इसको ऐड करिए और इसका डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड निकाल लीजिए. दिस इज 2.7 plus 1.6 plus 0.6, sorry, 2.7 plus 1.6 plus 0.3 raised to power 0. So this is your 1.665 kilonewton, 1.654 kilonewton. So this is therefore W is equal to 1.654 kilonewton. तो जे आपकी वैल्यू आई डायनामिक इक्विवेलेंट लोड की. तो आप देखिए सारी चीजें आपने निकाल ली है. डायनामिक इक्विवेलेंट लोड यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ N90 you have calculated. This you have got the value of L90. This you have got. So you can calculate the dynamic load carrying capacity. Right? तो dynamic load carrying capacity आप जो है calculate कर सकते हैं. Now, ये आपने नोट कर लिया. आपको डायनामिक इक्विवेलेंट लोड यू हैव कैलकुलेटेड 1.654 किलो न्यूटन. ये सारा समझ आ गया आपको. किस तरीके से ये मैंने टेबल को फॉर्म किया था. तो टेबल से मैंने N1, N2, N3 और N4 की वैल्यू विद द परसेंटेज ऑफ द टाइम आई हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द टेबल, राइट. और ये जो मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले में सीधा चीजें जो है पुट की और उसको कैलकुलेट किया. तो आपका डायनामिक इक्विवेलेंट लोड आपका ये निकल गया W इज इक्वल टू 1.654, राइट. तो देखिए हमने ये भी L90 की वैल्यू निकाली थी. कितनी आई थी L90 की वैल्यू? L90 इज हाउ मच? L90 की we have calculated L90 we have calculated the value I think 37 into 10 raised to power 6. चेक कर लो ये 37 into 10 raised to power 6 revolutions, right? Yes, 37 into 10 raised to power 6 revolutions, right? So therefore C में जैसे निकालूंगा, C is equal to 1.654, right, into L90. This we have calculated 37 into 10 raised to power 6 divided by 10 raised to power 6, right, raised to power 1/3. रेज टू पावर 1/3. तो इसे कैलकुलेट करो. सी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आई सी की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? कैलकुलेट इट.
So while calculating dynamic load capacity, you have calculated 5.54 kilonewton. So this is your answer. This is the answer. Now you understand this problem, that how I have started the problem. देखिए इसमें शाफ्ट आपका ड्राइव कर रहा था कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, राइट? तो मैंने कांस्टेंट स्पीड उसकी अज्यूम किया n. Then they have given the percentage of the time. If for the first 10% इतना लोड जो है, इतने परसेंटेज ऑफ टाइम के ऊपर रिवॉल्यूट करता है, रेवोल्यूशंस है. For the next percentage of time, another load is given. For the next percentage of time, another load is given, and for next percentage of the time, load is taken as 0, right? So these values we have taken. When the problem is like this, देखिए इसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड आपको निकालना है. First point is, first step is, you can say that you have to calculate the dynamic equivalent load. And dynamic equivalent load that you can calculate by using the relation, right? By using the relation this, W is equal to N1 into W1 raised to power N plus N2 W2 raised to power N. So by using this relation, you can calculate the value of the dynamic equivalent load. And when the dynamic equivalent load is given in this problem, they have given the reliability at the 90%, or the life is at the 90% they have given. So we have to calculate, when we will use this relation for calculating the dynamic load. So we will use this relation, L90 is equal to C upon W raised to power K into 10 raised to 6 revolution from here. So it means that you have to calculate L90. हमें क्या निकालना पड़ेगा? We have to calculate the rated life. L90 we have to calculate it. And for calculating the rated life, as you know the problem, as I have already given you the relation, that rated life L95 or कोई भी rated life होगी, so that rated life L2 upon L1 you can say L2 upon L1 is equal to 1 log E1 upon reliability at the rated life L2 and the reliability at R1, right? So this whole to power 1 upon 1 upon 7, 1 divided by 1 upon 1.17, right? So this formula we will use, and we will calculate the value of the L90, and by substituting you have calculated the problem. So one more problem like this I will solve now. Just see here. Here is the full, you can say, design of the bearing, as how you have to choose the bearing. If the radial load is given, axial load is given, then how you have to choose the bearing from the catalog, right? Manufacturer catalog, how you have to choose the bearing. So this problem will give you the complete concept of choosing the bearings, right? तो इससे आपको एक पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, इसलिए इस प्रॉब्लम को मैं करवा रहा हूं. दिस प्रॉब्लम इज अ बिट लेंथी, बट हियर दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन आल्सो, बिकॉज यू आर डूइंग द bearing chapters, but and if you don't know the parameters, on which parameters we have to choose the bearing and how we have to choose the bearing, but number of the bearing is useful for your applications. So this is the bearing. So try to understand it
I will try to give you the complete concept of this. So I have taken this problem, right? So just see here, select a single row deep groove ball bearing. तो हमें क्या select करना है? Single row deep groove ball bearing. This is given for a radial load of 4000 Newton. तो देखिए ये given मैं पहले लिख लेता हूं. Given आपका क्या है? तो आपको गिवन दिया है रेडियल लोड से, रेडियल लोड में WR ये डोनेट करता हूं इससे. सो दिस इज रेडियल लोड इज 4000 एंड द एक्चुअल लोड इज गिवन. तो एक्चुअल लोड को मैं WA से डोनेट करूंगा. दिस इज 5000 न्यूटन. तो एक आपका डीप ग्रूव वाल बेयरिंग, सिंगल रो डीप ग्रूव वाल बेयरिंग है जिसके ऊपर 4000 न्यूटन रेडियल लोड एक्ट करता है और 5000 न्यूटन जो है उसके ऊपर एक्शन लोड एक्ट करता है. ऑपरेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 1600 RPM. तो स्पीड इसका दिया है, स्पीड ऑफ द बेयरिंग कितना है? 1600 RPM दिया गया है कि जिसको ऑपरेट करना है कि स्पीड के ऊपर फॉर एन एवरेज लाइफ ऑफ 5 years एट 10 hours पे. तो एवरेज लाइफ कब तक, कितनी मतलब एवरेज लाइफ उसकी चाहिए? 5 years एट 10 hours के लिए. तो मैं एवरेज लाइफ इसकी लिख सकता हूं. एवरेज लाइफ इसकी कितने आवर होगी? इससे एवरेज लाइफ 5 years. तो 5 इंटू, अगर मैं 5 years, तो एक ईयर में मैं क्या करता हूं, मैं डे के हिसाब से निकाल लेता हूं. एक ईयर में आपके 300 डे में अज्यूम करता हूं कि जो वर्किंग डे है वो 300 है, कि जो हमें पूरे साल में जो बेयरिंग ऑपरेट करना है मैं अज्यूम करता हूं कि 300 आधा वर्किंग डेज. तो पर डे आपका निकल गया 5 years का 300 डेज इंटू 300 एंड इंटू 10 hours ए डे. और एक दिन में वो कितना वर्क करेगी? दिस इज द 10 hours a day. सो ये आपकी एवरेज लाइफ जो है ये आवर्स में निकलेगी. सो दिस इज 15,000 hours, राइट? सो दिस इज योर 15,000 hours. तो आवर में आपकी लाइफ निकली है. तो अगर हमें इसको रेवोल्यूशंस में निकालना है तो स्पीड आपको दिया है 1600 RPM. कितना है? 1600 RPM. तो लाइफ L जो है किसके बराबर होगी? सो ये आपका रिलेशन था 60 इंटू N इंटू LH, राइट? अगर आपको लाइफ आवर में दिया है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इंटू रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द रिलेशन. तो ये आप रिलेशंस में यूज कीजिए. 60 इंटू N आपको दिया है 1600, LH आपका 15,000 है. तो आप निकाल लीजिए कितना आएगा. जस्ट सी द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट. This is 1440 into 10 raised to power 6. This is 1440 into 10 raised to power 6 revolutions. तो ये मैंने इसकी लाइफ निकाल ली है कि इतनी रेवोल्यूशंस जो है इतनी रेवोल्यूशंस अगर इस कंडीशन में चलती है 5 years के लिए, और मैंने अज्यूम किया कि एक ईयर में जो आपके वर्किंग डे है दीज आर द 300. तो ये टोटल रेवोल्यूशन, ये बेयरिंग कितने टोटल रेवोल्यूशन ये बेयरिंग जो है अचीव करेगी? दिस इज 1440 इंटू 10 दिस वाज 6 रेवोल्यूशन. सो दीज थिंग्स आर गिवन टू अस, राइट? अब हमें
ये फाइंड आउट करना है कि हमें बेयरिंग कौन सी बेयरिंग इसके लिए सूट करेगी, कौन सी बेयरिंग इज मोर सुइटेबल फॉर दिस। तो इसको निकालने के लिए या इसका जो एक डिजाइन प्रोसीजर है टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स ऑन विच पैरामीटर्स वी हैव टू कैलकुलेट, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, तो उस पैरामीटर को हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर होगा आपका, वो आपका क्या है, डायनामिक इक्विवेलेंट लोड को निकालना, राइट। डायनामिक इक्विवेलेंट लोड को निकालना, डायनामिक इक्विवेलेंट लोड आपका निकलेगा तो सेकंड स्टेप होगा आपका डायनामिक लोड रेटिंग कैपेसिटी, आपको सी निकालना है, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू चूज द बेयरिंग फ्रॉम द कैटलॉग, मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग, यू हैव टू चूज द बेयरिंग। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डायनामिक इक्विवेलेंट लोड। तो जैसे आपको बताया है कि डायनामिक इक्विवेलेंट लोड, अगर रेडियल लोड एज वेल एज एक्सियल लोड बोथ आर एक्टिंग, तो इसका रिलेशन जो आपका है डायनामिक इक्विवेलेंट लोड, that is W, this is equal to X into V, WR plus Y into WA. So this is the relation, है ना। अब देखिए, इसमें देखिए V आपका रोटेशनल फैक्टर होगा, राइट। V is the rotational factor, and in most of the cases in the bearing we take the rotational factor B is equal to 1. In most of the cases we take the rotational factor B is equal to 1. B भी आपके पास है WR और WA, that is also given, that is 4000 Newton and 5000 Newton. Now the problem is that we have to calculate the radial, we have to calculate the load factors. What we have to calculate? We have to calculate the लोड फैक्टर्स, कि हमें लोड फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जब हमने वेयरिंग का कोई भी हमें वेयरिंग चूज करना है एंड वी आर इट इज गिवन कि इस वेयरिंग के ऊपर रेडियल लोड इतना है, इसके लिए हमें डिजाइन इसका वेयरिंग का चाहिए, एक्सियल लोड इतना है, तो सारा सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द डायनामिक इक्विवेलेंट लोड। तो हमें इसको रब करेंगे, आप जस्ट नोट कर लीजिए इसकी, खासकर इसकी ये वैल्यू, बिकॉज आई रिक्वायर दिस इज 4, दिस इज 440 into 10⁻⁶, right, revolutions. Now rest things I don't require, so I will just whole other things, right. WA भी आप लिख लीजिए, WR आपको दिया है 4000 and WA is 5000. So only these things are required. तो this आप क्या करें, आप कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप है, इन ऑर्डर टू, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रेडियल लोड फैक्टर, दैट इज X एंड बाई। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने से क्या चाहिए हमें, वी हैव टू check this condition, we have to check this condition, that is WA upon C0 and WR upon W not R, WA upon, sorry,
सो दिस इज WA अपॉन R। हमें ये दो कंडीशंस चाहिए। अब देखिए WA अपॉन R ये हमें मिल जाएगा, दिस इज 5000 upon 4000. So its value, you can say this value is 1.25, right? But ये जो आपका WA upon C naught है, C naught is what? C naught क्या है? Static load carrying capacity. So C naught is not given in the problem. आपको C naught नहीं प्रॉब्लम में दिया है, तो आप अज्यूम कीजिए टेबल के ऊपर जो आपकी डिजाइन डाटा बुक होगी उसमें टेबल होगा। टेबल आपका बार बियरिंग के लिए सेपरेट होगा, एंगुलर सिंगल रो एंगुलर बियरिंग के लिए अलग होगा। ये सारे का सारा टेबल एक आप यूज करेंगे। उस टेबल में आप देखेंगे कि जो आपका W आप अज्यूम कर लो, अगर आपको ये C naught की वैल्यू नहीं दिया है तो आप अज्यूम करो, मैं अज्यूम करता हूं WA upon C naught, इसकी वैल्यू मैं अज्यूम करता हूं 0.5, राइट। अब आपके पास WA upon C naught आपने अज्यूम किया 0.5, और जो आपका रेशियो है WA upon WR दिस इज 1.25। उसमें क्या होगा, दो कॉलम होंगे आपके WA upon R के दो कॉलम होंगे, एक लेस देन इसेंट्रिसिटी E होगा और एक ग्रेटर देन इसेंट्रिसिटी E होगा, राइट। एक लेस देन होगा, एक आपका ग्रेटर देन होगा, राइट। तो आप अगर इसका ये जो W 5000 upon this है, तो अगर इसके ऊपर वैल्यू चेक करेंगे 0.5 के ऊपर, राइट, तो इसकी जो सेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी, इफ यू विल फॉलो द टेबल, दैट इज 0.44, राइट। 0.44 इज द वैल्यू ऑफ E. So 0.44 the value of E. So this is 1.25. It means 1.25 is greater than 0.44 E. तो हम क्या करेंगे, जो टेबल हम चेक करेंगे उसमें WA upon WR ग्रेटर देन वाला टेबल हम लेंगे, सेंट्रिसिटी जो ग्रेटर वाला टेबल होगा वहां पे उस टेबल को लेंगे, और उस टेबल के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद दिस WA upon C naught, WA upon C naught, उस अकॉर्डिंग इन द अकॉर्डेंस ऑफ दिस we will just find out the radial load factor in the table. उसमें टेबल के ऊपर रेडियल लोड फैक्टर दिया होगा कि अगर आपका 0.5 है और 0.5 के ऊपर लेते हैं, सेंट्रिसिटी आपका कितना है 0.44 है, और ये जो आपकी रेशियो है WA upon R दिस इज 0.44 से क्या है, ग्रेटर है। तो हमें टेबल WA upon R हमें डाटा बुक से टेबल लेना पड़ेगा, दैट इज द ग्रेटर देन E, दैट इज द ग्रेटर देन सेंट्रिसिटी, और उस टेबल के ऊपर जो X और Y की वैल्यूज है वो दी होगी। तो X की वैल्यूज जो है एज पर टेबल, इफ यू विल सी एज पर टेबल X की वैल्यू आपकी 0.56 होगी आई थिंक, और Y की वैल्यू आपकी शायद 1 होगी, या आप टेबल से चेक करो, मैं जस्ट देखता हूं। द वैल्यू ऑफ X इज यस सो X की वैल्यू 0.56, और ये कब है, तब आपका WA upon R ग्रेटर देन आपका सेंट्रिसिटी होगा, दिस इज, और 0.5 के ऊपर जो सेंट्रिसिटी है E वो आपका है 0.44, तो 1.25 ये ग्रेटर देन है। तो इस टेबल को देखेंगे, जो ग्रेटर देन आपका सेंट्रिसिटी का होगा उसमें आप देखिएगा एज पर योर डिजाइन डाटा बुक you will find the value of X is equal to 0.56 and Y is equal to 1, right? So ultimately I will say your first step is to calculate the value of X and Y. मैंने आपको प्रोसीजर इसका समझा दिया है, तो how you have to calculate, because you have in case of this deep groove ball bearing, in case of deep groove ball bearing, if you will see the table,
तो हमें टेबल के ऊपर WA upon C0 और WA upon R के इन अकॉर्डिंग विद दैट में वैल्यूज दी होगी। तो WA upon C0 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो मैंने एज पर टेबल के ऊपर उसकी वैल्यू यूज की 0.5 मैं इसकी वैल्यू लेता हूं। तो एज पर 0.5 के हिसाब से मैंने WA upon R की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी यह है 1.25 और W upon A upon C0 के ऊपर जो सेंट्रिसिटी की वैल्यू थी दिस इज 0.44 जो मैंने 0.5 अज्यूम किया। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू is greater than this, so I have chosen the column where is WA upon WR greater than the E is greater than E, and as for that column the value of X and Y is given at WA upon C0 0.5 के ऊपर 0.5 के ऊपर X और Y की वैल्यू गिवन है in accordance with this 1.25 which is greater than eccentricity और वो वैल्यूज हैं x equal to 0.56 and y is equal to 1। I think ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये इसमें प्योरली ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं है, बिकॉज इसको निकालने के लिए you have to take the डिजाइन डाटा बुक आल्सो। और जो मैंने आपको डिजाइन डाटा बुक में आपको जो प्रोसीजर बताया किस तरीके से करना है कि सबसे पहले जो आपकी रोलिंग कांटेक्ट जो भी बेयरिंग होगी उसमें आपका रेडियल लोड और एक्सियल लोड दिया होगा इन केस ऑफ द डीप ग्रूव बार बेयरिंग और द बॉल बेयरिंग के केस। तो बॉल बेयरिंग के केस में व्हेन यू हैव टू फाइंड द रेडियल लोड फैक्टर एक्स एंड वाई यू हैव टू सी द टू कंडीशंस। You have to see the two conditions. One condition is WA upon C0 and the second condition is WA upon WR. WA upon R से you will find the value which is less than or greater than E. You will find the value which is less than or greater than E. और E हमने किस पॉइंट के ऊपर लेना है? W as per your WA upon C0. तो C0 की हमारे पास वैल्यू नहीं थी, तो मैंने टेबल से WA upon C0 अगर आप इस टेबल को चेक करेंगे जो आपका रोलिंग कांटेक्ट बेयरिंग में टेबल होगा आपके बुक्स में भी आपको मिल जाता है, डिजाइन बुक्स में भी मिलता है, कोई भी बुक आप फॉलो करेंगे तो ये आपको टेबल मिलेगा, राइट। तो उसमें WA upon C0 अगर मैं वैल्यू ज्यूम करता हूं 0.5 और सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेता हूं कि ये जब WA upon WR ग्रेटर देन सेंट्रिसिटी है मैं उस कॉलम को रेफर करता हूं 0.5 के अकॉर्डिंग जो कॉलम होगा WA upon R का जहां पे ग्रेटर देन सेंट्रिसिटी लिखा होगा उस कॉलम को मैं फॉलो करूंगा एंड उस कॉलम से मैं X और Y की वैल्यूज उस कॉलम में दी होगी कि अगर आपका WA upon C0 0.5 है और WA upon WR greater than eccentricity है, in that case the value of X is this and the value of Y is this. I think you have understood this। और ये प्रैक्टिकली करने के लिए जब इसको न्यूमेरिकल्स को आप करेंगे तो आप डिजाइन डाटा बुक रखिए। अगर आपके पास कोई मशीन डिजाइन की बुक है तो उसमें भी हर बुक में हर चैप्टर में ये आपको टेबल कंपल्सरी आपको दिया होगा क्योंकि इस टेबल के बिना आप यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये टेबल से आप वाली वैल्यू ले सकते हैं। ये पहला स्टेप था कि हाउ यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैंने ये वैल्यू इसकी ले ली x इज इक्वल टू 0.56 एंड y इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा रोटेशनल फैक्टर जो है इसमें रोटेशनल फैक्टर मैंने कहा b इज इक्वल टू 1। व्हाट इज b? b इज द रोटेशनल फैक्टर। b is rotational factor. This is equal to 1, right? In most of the bearing, we will take the rotational factor 1 because in most of the bearing, you have seen that in you can say inner race is rotating and the outer race is stationary. Most of the bearing. So in most of the bearing, you can say we will take the B is equal to 1 except the few bearings where the inner race is fixed
and outer race is rotating, at that case rotational factor V is equal to 1.2, right? तो मैं इसको V is equal to 1 लूंगा. In most of the cases you used to take like this because they are not given the condition whether it is inner race is rotating or the outer race is rotating. When the condition is not given like this, so then you have to assume or you have to take V is equal to 1. तो rotational factor आपका V is equal to 1 है. तो W की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. W is equal to X कितना है आपका 0.56 into 1 and WR is 4000 plus Y is given, Y is 1 into 5000, right? तो आप इससे वैल्यू निकाल लीजिए. डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड आपको मिल गया. सो W is equal to 0.56 into 7240 Newton. So dynamic load, that is 7240 Newton. तो जहां तक ये स्टेप आपको समझ आया कि फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है. फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हमें रेडियल लोड फैक्टर निकालने हैं एक्स और वाई की वैल्यू वाई यूजिंग द टेबल इन द डिजाइन डाटा. और निकालना कैसा है. In case of the deep groove bar bearing or ball bearing, two conditions we have to see. We have to see the two conditions. One condition is WA upon C naught and the second condition is WA upon R. Like in accordance with these two conditions, we have to calculate the value of X and Y from the design data book or from the table. Right? तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से आपने करना है. तो इसलिए आपका ये डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड मैंने कैलकुलेट कर लिया. दिस इज 7240. तो जहां तक नोट कर लो. तो नेक्स्ट देखिए, तो इसमें कंडीशन दिया है. इसमें कंडीशन क्या दिया था. मैं इधर ही लिखता हूं. यूनिफॉर्म एंड स्टैटिक लोड दिया है इसने. यूनिफॉर्म द कंडीशन इज assume uniform and steady load. Yes. तो कंडीशन दिया है यूनिफॉर्म एंड स्टेडी लोड. तो नेक्स्ट हमें क्या करना है. उसने कहा है assume uniform and steady load. तो जब यूनिफॉर्म एंड स्टडी लोड होगा तो इसमें टेबल आपको दिया है कि लाइट शॉकिंग लोड होगा उस वक्त सर्विस फैक्टर कितना होता है. यूनिफॉर्म स्टडी लोड के ऊपर कितना है. तो इसको आप कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. तो KS इज योर सर्विस फैक्टर. KS is service factor and this is equal to 1 in case of uniform steady load, right? So therefore dynamic equivalent load जो आपने लोड निकाला that is also the dynamic equivalent load, but there I have not taken the steady factor. So you can say this is equal to steady load service factor into 7240 Newton, right? So this is equal to 7240 Newton, right? तो अब हमने इस लोड के ऊपर 7240 न्यूटन के ऊपर हमें बेयरिंग को क्या करना है.
हमें बेयरिंग को क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द बेयरिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड मेरे हिसाब से है डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमें क्या निकालना है, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सी, हमें ये कैलकुलेट करना है, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सी। तो सी का फार्मूला आपको पता है, W इंटू L10 डिवाइडेड बाई 10⁶ रेज़ टू पावर 1/k, राइट। तो हमें इसका ये फार्मूला होगा इसका, राइट। सो W आपने डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड आपने निकाल लिया, दिस इज 7240। L10 की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया था, दिस इज आई थिंक 14 इंटू 40 10⁶ revolutions divided by 10⁶ revolutions 1/3, राइट। तो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी आप कैलकुलेट कर लो कि सी कितना है, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाउ मच, this is this is 81.76 किलो न्यूटन। आप खुद चेक कर लो, मेरा तो यही है 81.76 किलो। राइट। तो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी मैंने जहां तक निकाल लिया, ठीक है। अब इस बेस के ऊपर मैं टेबल से बेयरिंग का नंबर सिलेक्ट करता हूं कि मुझे कौन से बेयरिंग चाहिए, ठीक। तो आप क्या कीजिए, इसके आगे एक नेक्स्ट टेबल होगा जिसमें बेयरिंग्स के नंबर आपको लिखे होंगे और साथ में कॉलम होंगे, स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी का और डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी का कॉलम होगा। ये जो आपने कंडीशंस अज्यूम की थी W1/C0 करके 0.5, बिकॉज दैट वी हैव अज्यूम्ड, हमें स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी उसमें नहीं दी थी। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव कैलकुलेटेड द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये जो डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी किया वी हैव कैलकुलेटेड, एंड इफ यू विल सी द टेबल, वहां पे बेयरिंग के नंबर लिखे होंगे 215, 315, 415 series as per series. 215 is another series, 315 is another series, 415 is another series, like this। और उनके आगे आपका स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी भी दिया होगा और डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी भी दिया होगा, ठीक है। तो आपने ये जो 81.76 किलो न्यूटन निकाला डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, अगर आप टेबल को चेक करेंगे, इफ यू विल चेक द टेबल, यू विल फाइंड दैट कि इस कैपेसिटी के आगे पीछे एक आपको बेयरिंग मिलेगा, दैट इज द बेयरिंग नंबर 315। ये आप चेक कर लीजिए, दैट इज बेयरिंग नंबर 315 बेयरिंग नंबर होगा। और जिसको अगर आप टेबल के ऊपर चेक करेंगे तो उसमें आपकी जो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो दी होगी 72 किलो न्यूटन और डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी 90 किलो न्यूटन। तो ये था आपका 81.76। तो इसके अराउंड अबाउट डायनेमिक लोड कैपेसिटी हमने ये निकाली थी, तो इसके अराउंड अबाउट जो है ये हमें टेबल में हमें ये वैल्यू मिली, C = 90 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू मिली जब जिस बेयरिंग का नंबर था 315, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया आपने।
देखिए आपने सी को कैलकुलेट कर लिया, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी को कर लिया। अब इसके ऊपर एग्जैक्ट तो आपको बेयरिंग नहीं मिलेगा। बेयरिंग आपने क्या करना है कि इससे ज्यादा वाली लोड कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए बेयरिंग की, तभी ये बेयरिंग जो है क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, फेलियर नहीं होगा। इससे कम को हम ले नहीं सकते। तो इसके ज्यादा वाली जो डायनेमिक कैपेसिटी थी, अगर हम टेबल से बात करें, टेबल के ऊपर देखें तो 90 किलो न्यूटन जो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो किस बेयरिंग की आती है, बेयरिंग नंबर 350, ठीक है। तो उसके ऊपर आपकी जो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो आई 72 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें जब हमने इसके ऊपर ये बेयरिंग सेलेक्ट किया तो हमें ये सी नॉट की वैल्यू हमें इधर मिल गई। उधर उस फर्स्ट टाइम में मैंने अज्यूम किया था और जहां पे मुझे वैल्यू मिली तो मैं कहा था आपको ये कंडीशन होती है WA/C0। अब मैं इसके ऊपर स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी मुझे इसके ऊपर मिली, जो टेबल था, टेबल के ऊपर जो मैं वैल्यू निकाली बेयरिंग नंबर 315 के ऊपर मुझे स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल गई 72 न्यूटन। तो ये WA था आपका आई थिंक 5000, 72,000। तो कितनी वैल्यू आई इसकी, तो आप देखिए इसमें से कैलकुलेट करते हैं 5000 डिवाइडेड बाई 72, 0.069 मीन्स 0.07 ले लीजिए आप, 0.07। अब हमें WA की वैल्यू हमें मिलेगी जो हमने बेयरिंग सेलेक्ट किया वहां पे, वो वैल्यू है 0.07। लेकिन जो पहले हमने बेयरिंग को डिजाइन किया था वो हमने अज्यूम की थी वैल्यू 0.05 और उसी के ऊपर ही मैंने जो आपका लोड फैक्टर्स था एक्स एंड वाई उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग में मैंने कैलकुलेट किया था। अब मैं इसके ऊपर WA जो वैल्यू है 0.07 के ऊपर मैं फ्रॉम द टेबल आई विल सी कि व्हाट आर द लोड फैक्टर्स ऑन दिस। इसके ऊपर आपका लोड फैक्टर क्या होगा जब सेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन WA अपॉन R इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ E। तो इसके ऊपर मैं x, आप देखिए टेबल को देखिए, x की वैल्यू है 0.56। आई विल जस्ट सी द टेबल। x is yes, x is yes, and y is equal to 1.6 and y is equal to 1.6. So this value 1.6, this value you will find again from the table. टेबल देखना मैंने आपको बता दिया है। दिस वैल्यू यू विल गेन फाइंड फ्रॉम द टेबल x और y की वैल्यू किसके ऊपर लिया आपने, 0.07 के ऊपर। WA/C0 इज 0.07। तो अब डेफिनेटली इसके ऊपर जो इसकी वैल्यू थी दैट इज आल्सो डिफरेंट। जब वैल्यू इसकी डिफरेंट आई तो आपका क्या होगा, डायनामिक इक्विवेलेंट लोड हम इसके ऊपर निकालेंगे अब। तो डायनामिक इक्विवेलेंट लोड सपोज W इज द वैल्यू, ये आपका क्या है x into B into WR plus Y into W, yes, Y into W, यही फार्मूला है आपका। तो इसमें आप कैलकुलेट करो W इज इक्वल टू x क्या है आपका 0.56 into 1 into WR. What is WR here? So the value of WR 4,000 I think, yes, 4,000 plus Y is your 1.6 into 5,000। तो इसमें निकालिए डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड इस केस में क्या आएगा,
10,240, तो डायनामिक लोड आया आपका W, दिस इज 10,240 न्यूटन। अब मुझे इस डायनामिक लोड के ऊपर सर्विस फैक्टर तो 1 है, इसलिए ये 10,240 न्यूटन ही रहेगा। अब इसके ऊपर मुझे डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, राइट। ये जो आपका इक्विवेलेंट लोड था, जो जब मैंने स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी इस बेस के ऊपर बेयरिंग नंबर 315 के ऊपर मैंने लिया, तो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी आया था। अब मैंने इसके ऊपर कैलकुलेट करना शुरू किया है कि अगर मैं इसकी स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है 72,000 लेता हूं, उस केस के ऊपर ये मेरा डायनामिक लोड क्या आएगा, 10,240 न्यूटन। तो अब इसके ऊपर डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ये निकालेंगे हम, दैट इज C इज इक्वल टू W इंटू L10 डिवाइडेड बाई 10⁶, है ना, रेज़ टू पावर 1 के, यही फार्मूला है। तो इसके ऊपर ये आप निकाल लीजिए। तो C is equal to what is this 10,240 into L10 था आपका, what is L10? Yes, L10 था आपका 440 into 10⁶, this is 10⁶ raised to power 1 upon K, और जे आपका कैंसिल हो गया। तो जहां से आपको डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी मिला के, एंड सॉरी दिस यू हैव टू रिटन 1/3, राइट। सो C इज 1040 इंटू 1440 रेशो ऑफ 1/3। ये जरा साफ करके बताओ मुझे कितना आया, दिस इज हाउ मच। So this is I will write here. This is C आपका आया 1, ये चेक कर लीजिएगा, न्यूटन, राइट। Therefore C is equal to 115.635 किलो न्यूटन। अब देखिए, अगर मैंने कंडीशंस जो मेरा जो वैल्यू आया था C का जब मैंने पहले कैलकुलेट किया था, दैट इज 81.76, उस बेस के ऊपर जो उसके नेक्स्ट हायर था वैल्यू ऑफ द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी थी, उस बेस के ऊपर मैंने बेयरिंग को सिलेक्ट किया कि बेयरिंग नंबर हमारा 315 होना चाहिए, ठीक है। अब 315 के जो पैरामीटर्स थे वो मुझे टेबल से मिल गए। The parameters of the 315, कौन से पैरामीटर्स, स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, दैट आई हैव टेकन अप द टेबल है, फ्रॉम द टेबल आई हैव टेकन दीज पैरामीटर्स। सो जो 315 था, इसमें C नॉट की वैल्यू थी, जो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी थी, दिस इज 72,000 न्यूटन, एंड द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी 90 किलो न्यूटन, क्योंकि इसी बेस के ऊपर तो मैंने सेलेक्ट किया था। तो मुझे बेसिकली ये चाहिए कि इसके ऊपर स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, ये। अब इस कंडीशन के ऊपर मैंने ये दोबारा, क्योंकि मैं जो वैल्यूज निकालता था लोड फैक्टर की, वो जो फटाफट द वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग ऑन दिस कंडीशन WA upon C0 and WA
WA/R, राइट। हम इसी कंडीशंस के ऊपर इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। बट इन फर्स्ट केस उस वक्त मेरे पास C नॉट की वैल्यू नहीं थी। मैंने C नॉट WA/C नॉट एज पर टेबल आई हैव अज्यूम्ड द वैल्यू 0.5 एंड ऑन दैट बेसिस आई जस्ट कैलकुलेटेड एंड फाइंड आउट द बेयरिंग नंबर 315. But actually when I calculated the bearing number 315 on that bearing, the value of C naught is given from the table I taken. अब इस वैल्यूज के ऊपर मैंने दोबारा रेडियल लोड फैक्टर इसका निकाला, एक्स और वाई की वैल्यूज फ्रॉम द टेबल मैंने निकाली। तो जब हमारा WA/C naught था तो इस बेस पे मैंने 0.07 हमारे पास आया, जबकि मैंने पहले जूम किया था 0.05। इसके ऊपर जो आपकी वैल्यूज थी एक्स और वाई की, इफ यू विल गो थ्रू द टेबल, इफ यू विल सी द टेबल, डेफिनेटली यू हैव टू सी द टेबल, एंड फ्रॉम द टेबल व्हेन यू विल use the table, you will calculate the value of x is equal to 0.56 and y is equal to 1.6. This value is given in the table when WA/C naught is 0.07 and the value of WA/WR, that value is greater than the statistic. ठीक है, तो उसके ऊपर ये हमें x और y की वैल्यू मिली। अब x और y की वैल्यू मिलने से हमें क्या हुआ कि हमने अगेन इस वैल्यूज के ऊपर इस वैल्यू के ऊपर मैंने डायनामिक इक्विवेलेंट लोड कैलकुलेट किया। जो पीछे डायनामिक लोड था वो आपका वो था आपका 7240 न्यूटन। अब जब मेरे पास ये वैल्यूज एक्स और वाई की लोड फैक्टर्स मिले, सो आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डायनामिक इक्विवेलेंट लोड। दिस इज 10240 न्यूटन। और इसके ऊपर मैंने दोबारा डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि दिस इज योर द इक्विवेलेंट लोड मुझे मिला। अब मैंने ये चेक करने की कोशिश किया कि इसके ऊपर व्हाट द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग इज। तो ये मेरा आया डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी 115.635 किलो न्यूटन, राइट। तो अब ये जो डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी मेरी आई, तो इसका मतलब है जो बेयरिंग मुझे सिलेक्ट करनी होगी, द बेयरिंग व्हिच आई एम सेलेक्टिंग, दैट बेयरिंग शुड हैव द मोर डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी देन दिस. If you will take the bearing which is having the less dynamic load carrying capacity as in the case of 315, your bearing will fail. Your bearing will fail. Your bearing will fail. So it means that 300 bearing doesn't correspond to our requirement. So ये bearing हमारी जो हमने assume किया था, जो हमने dynamic load carrying capacity calculate की थी, जब मैंने WA/C naught अज्यूम किया था, तो उसके ऊपर मैंने बेयरिंग को कहा कि ये बेयरिंग हमारे लिए 315 है। अब जब 315 मुझे बेयरिंग मिला तो वहां से स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी मिला। अब उसके ऊपर मैंने ये दोबारा क्वेश्चंस को पूरा चलाया, इसको न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट किया, डायनामिक इक्विवेलेंट लोड किया, डायनामिक इक्विवेलेंट लोड से मैंने डायनामिक इक्विवेलेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी की, तो ये जो कैपेसिटी आई उस वक्त ये है। इसका मतलब ये बेयरिंग व्हिच वी हैव सेलेक्टेड अर्लियर, दिस बेयरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आप टेबल देखेंगे तो बेयरिंग नंबर 319, जो बेयरिंग नंबर आपका 319 है, बेयरिंग नंबर 319, उसकी जो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है, आई थिंक डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग, यस, दिस इज 120 किलो न्यूटन। That is 120 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि बेयरिंग नंबर 319 इज सुइटेबल फॉर आवर एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? जिसमें आपका रेडियल लोड जो था 4000 था और एक्चुअल लोड 5000 है, जो बेयरिंग के ऊपर एक्ट करता है, और जो भी कंडीशंस उसकी दी थी कि ये इतने आवर्स, इतने ईयर्स हमें बेयरिंग्स जो है इसकी लाइफ है, और ये सारी कंडीशंस के ऊपर जो मैंने एंड में जो मैंने इसका पैरामीटर्स के हिसाब से इसका जो डिजाइन किया, या डिजाइन मैंने फाइंड आउट किया कि किस डिजाइन की मुझे बेयरिंग चाहिए, तो वो आपको बेयरिंग चाहिए बेयरिंग नंबर 319। क्योंकि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 120 किलो न्यूटन है, विच इज ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब ये है कि ये बेयरिंग इज सेफ। हमें कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए, जब कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी बेयरिंग की चाहिए, दैट इज 115.635। जो कंडीशंस थी, जिस कंडीशंस के ऊपर
हमें बेयरिंग को ऑपरेट करना था, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस दैट कंडीशन अवर रिक्वायर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 115.635, but here the load carrying capacity is less, so this bearing we don't require at all. और उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा ऑन दैट बेसिस मैंने दोबारा जो भी कैलकुलेशंस आपको बताया कि किस तरीके से इसको मैंने प्रॉब्लम्स को आगे चलाया, तो जो मैंने बेयरिंग सिलेक्ट किया इसके लिए वो किया 319, क्योंकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन जो कि इससे ग्रेटर है. सो दिस इज द वे, दिस इज द वे, this is the method, this is the way that we should select the bearings. ये एक तरीका, ये एक मेथड है. इस तरीके से हम बेयरिंग्स को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बेयरिंग नंबर हमें रिक्वायर्ड, हमें कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें किस तरीके से ये फॉलो सारा सिस्टम करना है, और फिर उसके बाद हमें ये बेयरिंग को सिलेक्ट करना है. अदरवाइज क्या होता है, वी यूजली रैंडमली गो टू द मार्केट and we just say we require the bearing 390. We don't know why we require the bearing 390, why we require the bearing 270, why we require the bearing 490. We don't know this thing. So this is the way. ये एक तरीका है कि हमें जब भी हमें कोई भी डिजाइन आपको दिया है, जो भी आपको डिजाइन करना है कि आपको इस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए कौन सा बेयरिंग चाहिए, कौन सा बेयरिंग का नंबर चाहिए, और जो मैंने आपको प्रोसीजर, जो आपको कंसेप्ट दिया है, आई थिंक ये कंसेप्ट मैंने बड़ा ग्रास रूट लेवल से और बहुत ही आप कह सकते हैं एक अच्छे तरीके से आई हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इसको मैंने. और अदरवाइज आप देखिए, कहीं भी आप पढ़िए और कोई भी आप ऑनलाइन क्लासेस में देख लीजिए कि कोई भी किसी ने भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं किया है. Either they solve the question in GATE, they are the very simple, very you can say conceptual type of questions, not more than this, or the other simple questions. But this question basically this is very difficult, and actually this is difficult to solve here because this question is not purely numerical. Here you need the data book also, you need the tables also. But mera ek I want to give it, because I am related with the professionals also, not with the students. I am related with the professionals also because I was myself a professional. I was not a teacher. तो मैं प्रोफेशनल्स के हिसाब से जो मेरा एक डिजाइन था, तो मैं उन लोगों को एक एजुकेट करना चाहता हूं कि अगर आपको जब भी आप कोई भी बेयरिंग सिलेक्ट करना है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास पर्टिकुलर डाटा आपको दिया गया है, तो वो उस पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से, उस पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से आपको इस तरीके से आपको डिजाइन पैरामीटर्स निकालने हैं, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस. आई थिंक दिस इज ऑल. और ये आई थिंक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा. इसमें मैंने बहुत टाइम लिया है. Mostly the people are saying me you are making a very big lecture, but I am not satisfied because only I have just given you the two problems, and the time is more than 1.5 hours. But I want to give you as much as maximum things. So always bear with me. My lectures they are not you can say very small one, क्योंकि मेरी एक आप कह सकते हैं डिजायर है मेरी कि मैं आपको मैक्सिमम मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को दूं. अगर मैं इसी एक या दो प्रॉब्लम्स निकालूंगा उससे आपका पर्पस हल नहीं होगा. ओनली जस्ट आई एम जस्ट गिविंग द ग्लिम्पसेस ऑफ द थिंग्स. बट जो मेरा है, मैं चाहता हूं कि मैं अगर कोई भी कंप्लीट टॉपिक लेता हूं तो उसको मैं डिटेल के साथ, पूरा डिटेल के साथ जाऊं. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नीड्स द टाइम, and the people they don't have the time. They don't have the time to watch the, you can say, lectures. They want a very simple ready-made type of things, half an hour, 15 minutes, 20 minutes like this. But if I will take one more problem, I think that lecture will go up to 2 hours. But I will think I am not satisfied. मैं दो प्रॉब्लम से भी satisfied नहीं हूं. मैं एक प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग करना चाहता हूं, और उसके बाद because I want to do the problems of the GATE also.
लेकिन आज की क्लास में तो गेट प्रॉब्लम्स को मैं टच नहीं कर पाऊंगा। वो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पर्टिकुलरली जो गेट की प्रॉब्लम्स होंगी उसको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आज कन्वेंशनल मैं एक प्रॉब्लम को हल करना चाहता हूं, सॉल्व करना चाहता हूं। सो प्लीज बियर विद। अब देखिए ये प्रॉब्लम, ए सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग नंबर 310। ठीक है, इसमें बेयरिंग नंबर भी दिया है 310, और कौन सी है, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग इज यूज्ड फॉर एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। द बेयरिंग इज टू कैरी द रेडियल लोड 2500 न्यूटन, सो WR 2500 न्यूटन, एंड एन एक्सियल लोड और थ्रस्ट लोड WA दिया है आपको 1500 न्यूटन। Assuming light shock load, so assume क्या करना है, assuming light shock assuming light shock load, तो इसमें जो सर्विस फैक्टर होगा वो होगा 1.5। ये जो दिया है ये आपको सिर्फ सर्विस फैक्टर निकालने के लिए दिया है। दिस इज योर 1.5। डिटरमिन द रेटिंग ऑफ द लाइफ, हमें क्या निकालना है, C हमें निकालना है। रेटिंग ऑफ द लाइफ वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। हमें क्या निकालना है, रेटिंग ऑफ द लाइफ हमें निकालना है। अब देखिए ये सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग दिया है, नंबर भी इसका दिया है। तो सिंगल रो कॉन्टैक्ट एंगुलर बॉल बेयरिंग के ऊपर आप ये WA ऑन WR की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है इसका वैल्यू, तो इसमें देखिए, इसमें भी आपने क्या करना है, फ्रॉम द टेबल। और देखिए टेबल में एक कॉलम बना होगा, पहला कॉलम होगा ऊपर इस तरीके से, उसमें लिखा होगा सिंगल रो बॉल बेयरिंग, राइट। बॉल बेयरिंग का कॉलम होगा, उसके आगे दूसरा कॉलम होगा, इस तरीके से एक कॉलम होगा जिसमें सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग लिखा होगा, ठीक है। तो इस केस में फ्रॉम द टेबल हमें जो फ्रॉम द टेबल जो वैल्यू है, टेबल देखिए आप, एक्स फ्रॉम द टेबल, एक्स की वैल्यू इज सो मच। आप टेबल को यूज करें तो उसकी वैल्यू आप निकालें। सो एक्स इज 1 एंड y इज इक्वल टू 0, राइट। एक्स इज 1, सो एक्स इज 1 and y is equal to 0. So this value you will see from the table. और कॉलम आपने कौन सा देखना है, वो ऊपर से रखना है। ये नहीं कि आप बॉल बेयरिंग का देख लो आप वैल्यू, नहीं, उसमें हर की वैल्यू अलग दी है। तो आपने देखना है कि ये इसने इसलिए दिया था सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। इसके ऊपर जो आपने वैल्यूज देखनी है वो क्या है, रेडियल लोड फैक्टर की क्या वैल्यू होगी, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, राइट। और मोस्टली वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, मोस्टली हम देखते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इक्विवेलेंट लोड निकालते हैं हम। इक्विवेलेंट लोड, इक्विवेलेंट डायनेमिक लिख लीजिए, इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड, राइट। सो क्या फॉर्मूला था इसका, W इज इक्वल टू x इंटू V इंटू WR प्लस y इंटू WA, राइट। दिस इज द फॉर्मूला इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड का, दिस इज द फॉर्मूला। मैं इसको मिटा देता हूं, वाला थोड़ा पोर्शन चाहिए मुझे। W क्या है आपका, therefore डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड W इज इक्वल टू x क्या है आपका, x1, जो B क्या है रोटेशनल फैक्टर, ये भी हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, और WR आपका दिया है 2500 प्लस y क्या है 0 इंटू
वो जो भी वैल्यू है तो 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 2500 न्यूटन, ये डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड आपका आया। अब देखिए सर्विस फैक्टर इसमें दिया है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग है लाइट शॉक लोड, तो लाइट शॉक लोड के केस में सर्विस फैक्टर आपका क्या होगा 1.5। सो देयरफॉर W आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड सर्विस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करो 1.5 into 2500, so this is how much, $3750 Newton. So this is 3750 Newton. तो जे आपको डायनेमिक लोड आपको मिल गया, राइट। अब आपने क्या निकाला है, आपने निकालना है वैल्यू ऑफ सी, डायरेक्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो ये फार्मूला लिख लो। सो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया था, राइट। तो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी हम निकाल लेंगे इससे, इसके ऊपर देख रहे हैं ना हमें। तो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी तो आप कह सकते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप है डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सी, दैट इज डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। हमें डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, क्या निकालना है सी। तो बेयरिंग आपको दिया है, आपको 310 नंबर बेयरिंग, तो 310 नंबर बेयरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी आपको टेबल में दी होगी। तो अगर आप टेबल करेंगे यूजिंग टेबल, राइट, तो यूजिंग टेबल फॉर द बेयरिंग नंबर 300, कौन सा बेयरिंग नंबर था 310 आई थिंक, बेयरिंग नंबर इज विच बेयरिंग इज गिवन। So bearing number, कौन सा bearing दिया था इसमें, just 310 for single row angular contact wall bearing, for single row angular contact bearing, angular contact bearing। तो इसकी थी 53 किलो न्यूटन, 53 किलो न्यूटन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है बियरिंग नंबर 310 की फॉर सिंगल रो एंगुलर कंटैक्ट वॉल बियरिंग। तो हमें क्या निकालना है, रेटिंग लाइफ, वी हैव टू कैलकुलेट द रेटिंग लाइफ, दैट इज L10, दिस इज इक्वल टू C अपॉन P रेज टू पावर n इंटू 10⁶। कई जगह मैं P लिख रहा हूं, कई जगह W लिख रहा हूं, एक्चुअली P एंड W बोथ आर सेम, मैं W लिख लेता हूं, राइट। तो C आपका है 53,000, W आपने निकाला 2500, तो दिस इज सिंगल, कौन सा था ये, एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग, एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेयरिंग। तो एन क्या होगा इसमें 3, राइट, इंटू 10⁶।
तो कैलकुलेट कीजिए, फिर फाइंड आउट बताइए मुझे कितना आया। Sorry, actually this value, not purchase of this value, I just forget to write down there. So this value, ये सब this vector से you multiply की value को लिखनी है ना, 3750 निकालिए कितना है, निकालिए 0.3 2823.14 into 10 to the 6. This is 282314. So this is the life. तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आया। इस प्रॉब्लम में क्या दिया था आपको, बियरिंग नंबर उसने ऑलरेडी दे दिया था। तो बियरिंग नंबर ऑलरेडी देने का मतलब क्या था, व्हाट इज द फंड, व्हाई ही हैज गिवन द बियरिंग नंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि जो भी आपने न्यूमेरिकल करना होता है, फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन एंड व्हाई इट इज गिवन लाइक दिस। इसमें हमें व्हाट वी विल गेट इन द न्यूमेरिकल, दिस इज द मेन थिंग टू जस्ट फाइंड आउट। तो इसने बियरिंग नंबर 310 दिया था, तो बियरिंग नंबर 310 देने का मतलब क्या था कि फ्रॉम द टेबल वी विल कैलकुलेट द डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। सी की वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएगी ऑन 310 नंबर बियरिंग के ऊपर सिंगल, ठीक है ना। इसके ऊपर हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। अब प्रॉब्लम क्या थी इस न्यूमेरिकल में, ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड। अब डायनामिक इक्विवेलेंट लोड को भी मैंने क्या किया, टेबल को यूज किया, और टेबल को यूज करने के बाद मैंने अज्यूम किया कि लोड फैक्टर x इज इक्वल टू 1 है, और y मैंने उसका 0 कर लिया। एंड बाय यूजिंग द इक्वेशन x, बाय यूजिंग द इक्वेशन w इज इक्वल टू x इंटू b इंटू wr प्लस y इंटू wa, बाय यूजिंग द इक्वेशन एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, y and b, where v is the rotational factor and mostly, as I had already told you, that mostly the value of b that is taken as rotational factor, that is taken as 1. So by substituting the values, we got the dynamic equivalent load. Now dynamic equivalent load हमें मिला, but they have given the service factor also. कि condition क्या थी, light shock loads. So when the condition is like this, then we have to उस लाइट शॉक लोड में जो आपका सर्विस फैक्टर होगा Ks, दिस इज इक्वल टू 1.5। तो डायनामिक इक्विवेलेंट लोड, व्हाट द लोड यू हैव कैलकुलेटेड, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1.5 एंड देन यू विल गेट द डायनामिक इक्विवेलेंट लोड। जो डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द टेबल, बिकॉज द टेबल ऑन द बियरिंग ऑफ द टेबल 310 के ऊपर, बियरिंग नंबर 310 के ऊपर मैंने डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो टेबल से ले लिया। डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। तो जो लाइफ थी उसकी रेटिंग लाइफ जो मैंने निकाली थी L10, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फार्मूला एंड यू विल गेट दिस। सो आई थिंक दिस इज today's too much. The lecture is always lengthy, otherwise I'm just interested to give you one more numerical, but here today I will stop the lecture, and my next lecture I want actually to give you few problems of the gate and ESC also. So one more lecture I will take on this numerical of the roller contact bearing, and that lecture pertains to the numericals of the gate and one two problems of the ESC. Right? So this is all. Thank you very much. Thank you.